منبر نور پر جلوہ بار علماء ذویل احترام مشائخ سادات حاضرین اہل سنت و جماعت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی حبیبہ المصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ایک بار درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمتا سرمدا ابدا۔ مجھے یقین ہے کہ یہاں پر جتنے آئے ہوئے ہیں یہ سب کسی نیتا کو سننے نہیں آئے ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام کو سننے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں کا حال یہ ہوگا، گھبرا گئی ہے گردش دوراں کبھی کبھی، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ دیوان گانے عشق محمد کو دیکھ کر گھبرا گئی ہے گردش دوراں کبھی کبھی۔ یہاں پر کوئی شور نہیں مچا رہا ہے، بلکہ ہر آدمی جو چپ بٹھا رہا ہے وہی شور مچا رہا ہے۔ آپ غور کر کے دیکھ لیں، جو خاموش کرنے کے لیے آواز اٹھا رہا ہے اسی کا شور ہے۔ ہر کوئی کہتا ہے اللہ کا واسطہ چپ ہو جاؤ، سامنے والا کہتا ہے رسول اللہ کا واسطہ چپ ہو جاؤ، اللہ اور اس کے رسول کے واسطے۔ یہ دیکھو جتنے ہاتھ اٹھا رہے ہیں آپ سب شور مچا رہے ہیں، کوئی کسی کو خاموش نہ بٹھائے، کوئی کسی کو خاموش نہ بٹھائے۔ ہمیں پتہ ہے دنیا کی بڑی سی بڑی فوج کو سنبھالا جا سکتا ہے، دیوانوں کو نہیں سنبھالا جا سکتا۔ بہت خوب ماشاءاللہ سبحان اللہ، بے شک۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیوانوں کا ہجوم ہے۔ میرے عزیزو، وقت ہمارے پاس بہت کم رہ گیا، میں ایک ہی جملے پر اپنی گفتگو ختم کر کے چلا جاؤں گا۔ اس طرح کی ہمہ ہمی میں گفتگو نہیں ہوگی۔ اقبال نے کہا ہے، یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر پہ دریا و صحرا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سرائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کی لذت جسے ملتی ہے وہ دونوں عالم سے بے پرواہ ہو جاتا ہے، وہ بے خوف ہو جاتا ہے۔ اور بکا ہوا کس کے ہاتھ میں؟ دنیا کے ہاتھ میں نہیں، بلکہ شاعر نے کہا ہے بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے۔ بے شک سبحان اللہ۔ جو ایک بار دربار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں اپنے آپ کو سپرد کرتا ہے، پھر بڑی سی بڑی طاقتیں اس کی بولی نہیں لگا پاتی۔ آپ کو پتا ہے وقت کی عبقری شخصیت جن کو اللہ نے قلم کی دولت عطا کی، زبان کی دولت عطا کی، علم و ہنر اور فن میں یکتا روزگار، بریلی کے تاجدار امام احمد رضا خان فاضل بریلوی، جن کی نعتیہ کلام کا حال یہ ہے کہ پوری دنیا آج گونج رہی ہے ان اشعار پر۔ ان کے زمانے میں بھی کوئی صاحب آئے تھے اور کہا تھا کہ مولانا آپ اچھی شاعری کرتے ہیں، ہمارے علاقے کے ایک بڑے سیٹ صاحب ہیں، ان کی شان میں بھی کچھ لکھ دیجئے، ان کی شان میں بھی کچھ لکھ دیجئے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی صرف شاعر ہوتے تو لکھ دیتے، اس لیے کہ شاعروں کا مزاج ہوتا ہے سیٹھوں کی تعریف کی جائے گی تو وہاں سے نذرانہ ملتا ہے، بڑے لوگوں کی تعریف کی جائے تو وہاں سے لفافہ ملتا ہے۔ لیکن وہ اعلیٰ حضرت صرف شاعر نہیں تھے، بلکہ آپ کی زبان سے سنو اعلیٰ حضرت کون تھے؟
وہ کہتے ہیں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں ہائے ہائے، واہ۔ مانگتے تاجدار پھرتے سبحان ہیں. اللہ، بہت خوب، ماشاء اللہ، بے جس شک۔ گلی میں تاجدار مانگتے پھرتے ہیں اس گلی کا گدا ہوں میں. تم مجھ سے دنیا داروں کی تعریف لکھوا رہے ہو، یہ نہیں ہو سکتا. اعلیٰ حضرت نے پھر کیا لکھا؟ کہنے لگے کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا. میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا. میرا دین پارے نہ نہیں، سبحان اللہ، وہ بے شک۔ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں بے نہیں. شک، سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی وقار، جو بازار مصطفیٰ میں بکا ہوا ہے وہ پھر دنیا کے ہاتھوں میں نہیں بکتا. اوہ، بے شک۔ ادھر ادھر اس کی قیمتیں نہیں لگائی جاتی. آج آپ کے سامنے صرف اتنی بات عرض کرنا چاہتا ہوں، دل کو بے خوف بنانے کے لیے حضور پاک کے عشق سے اس کو بھر دو. اس لیے کہ اعلیٰ حضرت یہ بھی فرماتے ہیں جس دل میں رسول پاک کی محبت بس جائے پھر اس کا حال یہ ہے خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے. میں آج ایک بات کہتا ہوں، بہت سارے لوگ ہم سے یہ پوچھتے ہیں اتنے سارے نوجوانوں کو آپ کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ جہاں جاتے ہیں یہ بھیڑ جمع ہوتی ہے اور یہ کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ کیا ان کو کسی بات کی تیاری کرائی جا رہی ہے؟ میرے عزیزو، جس کے دل میں بھی شک و شبہ ہے میں کھل کر کے بیان کرتا ہوں. میں صرف اور صرف اتنی بات چاہتا ہوں، اتنی بات چاہتا ہوں. ہماری کوئی ایسی تنظیم نہیں جہاں چاقو چھری بندوق بارود کی تربیت دی جاتی ہو. ہماری کوئی ایسی جماعت نہیں ہے جہاں خفیہ پلاننگ کی جاتی ہو، سیکریٹ میٹنگیں کی جاتی ہو. ہماری چھپی ہوئی کوئی میٹنگ نہیں ہے. کسی نوجوان کو ہم ورغلا کر کے کسی کو مارنے کی تربیت کبھی نہیں دیتے. ہاں، بات صرف اتنی کرتے ہیں میرے عزیزو، تمہیں کسی سے بھی مقابلے کرنے کی ضرورت نہیں. اپنے آپ کے دل میں حضور کا عشق ایسا بساؤ کہ تمہارے چلنے پھرنے سے ہی کئی کیڑوں کی یوں ہی موت آ جائے. اوہ، واہ واہ، بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیڑوں کو یوں ہی موت آ جائے. عاشق رسول جس طرح سے چلتا ہے اس کی خوشبوؤں سے شیطان بھاگتا ہے، اوہ، بے شک۔ اس کی ہوا سے شیطان بھاگتا ہے. اپنے آپ کو بیچ دو بازار مصطفیٰ میں. اوہ، بے شک۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں جو آتا ہے اس کا حال یہ ہوتا ہے. حضرت سفینہ کہتے ہیں ایک صحابی ہیں، جنگل میں انہوں نے راستہ دیکھا ہوا تھا لیکن بھٹک گئے، راستہ پتہ نہیں تھا اور ادھر ادھر دیکھ رہے تھے، راستہ تلاش کر رہے تھے. اچانک ایک شیر سامنے سے آیا. شیر جس کے سامنے آ جائے پھر گھگی بن جاتی ہے، ہاتھ پیر کانپنے لگ جائیں. بے شک۔ لیکن وہ درندہ جو منہ پھاڑ کر کے آ رہا تھا، بھوکا شیر، کسی پر بھی حملہ کر سکتا ہے. جب قریب آنے لگا حضرت سفینہ جو صحابی رسول ہے، غلام مصطفیٰ ہے، کہتے ہیں میں نے شیر کو پکار کر صرف اتنا کہا یا ابا الحارث انا مولا رسول اللہ، اے پھاڑ کھانے والے درندے تو جانتا ہے میں رسول اللہ کا غلام ہوں. اوہ، واہ واہ، بے شک۔ ایک ہی جملہ کہا میں رسول اللہ کا غلام ہوں. روایت میں معلوم بتایا گیا ہے کہ وہ شیر جو منہ پھاڑے آ رہا تھا اچانک سر جھکایا حضرت سفینہ کے تلوے چھاٹنے لگا، اوہ، واہ واہ، واہ۔ سر جھکا کر ان کے قدموں کے بوسے لینے لگا اور وفادار کتے کی طرح دم ہلاتا ہوا پھر آپ کو مدینے تک کا راستہ بھی بتا کر چلا گیا. سبحان اللہ۔ ایک بات یاد رکھو، جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہو جاتا ہے مولا تبارک و تعالیٰ کائنات اس کی طرف پھیر دیتا ہے. سبحان اسی لیے میں نے کہا میرے مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک بات فرماتے تھے اور بڑے گرو کی بات ہے، فخر کی بات ہے. وہ کیا ہے سنو. آپ کا نعتیہ کلام آپ نے سنا ہوگا، حضور تاج الشریعہ کا مشہور زمانہ نعتیہ کلام ہے، منور میری آنکھوں کو میرے شمس الضحیٰ کر دے، غموں کی دھوپ میں وہ سائے زلف دتا کر دے، جہاں بانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے. لیکن تاج الشریعہ کا یہ شعر توجہ چاہتا ہوں فرماتے ہیں جہاں میں ان کی چلتی ہے، جہاں میں
उनकी चलती है, वो दम में क्या से क्या कर दे, जमीन को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे। ओह बेशक सुभान मुर्शिद गिरामी ने तो ये फरमाया जहां में उनकी चलती है। अगर तुम्हारा अकीदा है तो बताओ जहां में उनकी, यकीन है आपको, दिल से कह रहे हैं आप, जहां में उनकी, चलती है। हाँ किसी और की नहीं, आमिना के लाल की। ओह बेशक हम ताजदार मदीना की बात कर रहे हैं। हाँ ये हुकूमत तख्त पर कोई भी आ जाए, चंद दिनों के लिए आ जाए, चंद सालों के लिए आ जाए, रूहों पर और दिलों पर हमारे अगर हुकूमत है तो ताजदार मदीना की। ओह बेशक सुभान अल्लाह। और जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दें। और हुजूर पाक के गुलामों ने देखा भी है। आपको पता है हजरत साद इब्न अबी वक्कास 400 घुड़सवारों को लेकर इराक में चल पड़े। इराक से उन्हें ईरान जाना था, लेकिन बीच में दरिया है, दरिया अबूर करने के लिए रास्ता नहीं है। सामने जितने ईरानी फौज थे सबने दरिया के पुल जितने थे ब्रिज तोड़ दिए कि कहीं ये साद इब्न अबी वक्कास के 400 साथी मोहम्मद अरबी के सिपाही इधर क्रॉस करके ईरान में ना आ जाएं। ब्रिज तोड़ डाले, सारे दरिया के ऊपर जितने पुल थे तोड़ दिए। लेकिन क्या उन्होंने हौसला तोड़ दिया? क्या ईमान वालों के अज़्म और उनके इस्तिकामत को तोड़ा? नहीं। साद इब्न अबी वक्कास अपने 400 साथियों को लेकर दरिया के किनारे खड़े होते हैं, कहते हैं ऐ मेरे साथियों चलो आगे चलना है। साथियों ने कहा कैसे चले? कहा इसी पानी से चलना है। सहाबा ने ये नहीं पूछा उड़ कर जाएंगे या तख्त बिछा कर जाएंगे, कैसे जाएंगे किसी ने नहीं पूछा। साद इब्न अबी वक्कास ने कहा मैं अपना घोड़ा पानी में डालता हूं, तुम भी मेरे पीछे पीछे चल पड़ना। ये मैं रसूल पाक की बात नहीं कर रहा हूं, न किसी रसूल या किसी नबी की, बल्कि रसूलुल्लाह के गुलामों की बात कर रहा हूं। साद इब्न अबी वक्कास कहते हैं कि हमने घोड़े इस यकीन के साथ डाल दिए थे कि पानी पर भी तो उनकी चलती है। और जैसे ही घोड़े उन्होंने दरियाए दजला में डाले, अरे दरियाए दजला की गहराई इतनी ज्यादा है कि आज अगर अंदर कोई चीज डाली जाए तो 10 मिनट लग जाए पहुंचने के लिए, गहराई है। लेकिन जब ये घोड़े डाले, एक ने, दो ने, 4, 10, 50, 400 सहाबा पानी पर घोड़े डाल चुके हैं। लेकिन जानते हो पूरी दुनिया हैरत में थी, घोड़े के टाप में पानी तक नहीं लगा। वो चलते हुए इसी तरह ईरान की सरहदों में आ गए। ये तारीख की मशहूर किताब तारीख तबरी में लिखा हुआ है। ईरान के फौजियों ने फारसी में पुकार कर कहा था देवा आमदंद, देवा आमदंद, ये तो जिन्नात की जमात आ रही है, ये जिन्नात की जमात आ रही है। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पाक, जिसको इकबाल ने 2 जुमलों में पूरा बयान कर दिया कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लाहो कलम तेरे है। अजीज़ान गिरामी, हुजूर पाक की मोहब्बत की लज्जत जिसे मिली है उन्हें अंदाजा है। वो हवाओं के थपेड़ों से नहीं घबराते, मौसम की सख्तियों से नहीं घबराते, जालिमों के जुल्म से नहीं घबराते, और इस तरह शयातीन के शर से वो नहीं घबराते। बाज लोग आज नर्वस होकर के कहते हैं हालात क्या हो गए मुसलमानों के, जहां जहां देखो इनको मारा गया, कत्ल किया गया, टुकड़े किए जा रहे हैं। और कुछ लोग तो तालियां बजा बजा करके देख रहे हैं, गज्जा में देखो बच्चों को मारा जा रहा है। ये बेरहम लोग जो तालियां बजा बजा कर देख रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है अभी चंद दिनों के बाद इस्लाम खत्म हो जाएगा। ये बच्चे मारे जा रहे हैं, ये गिन रहे हैं 1000, 2000, 4000, 5000, 10,000 तादाद गिन रहे हो बच्चों के मरने की। और उसके बाद दिल में ये ख्याल करते हो कि चंद दिनों के बाद ये धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। सालिमो तुम्हें पता नहीं, हमारी तारीख में करबला भी है, हमारी तारीख में बद्र हुनैन भी है, हमारी तारीख में ओहद और खैबर भी है। लेकिन तुम्हें ये मालूम होना चाहिए गर्दनों के कट जाने का नाम इस्लाम खत्म नहीं है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान नर्वस होने की जरूरत नहीं हालात के साथ। अभी इस वक्त क्या चल रहा है? अंधेरा है, रात का वक्त है ना, सबको पता है, लेकिन कोई घबराया हुआ नहीं है। सबको पता है जो मौला रात लाया है वो सुबह भी लाएगा, जो रात के अंधेरियां लाया है वो सूरज भी तुलू करेगा। आज अगर उम्मत मुस्तफा पर अंधेरियां छाई है
थोड़े दिनों की बात है कि फिर वो उजाले आएंगे, वो रोशनियां आएंगी। दुनिया देखेगी जब एक इमाम मेहदी का झंडा लहरा रहा होगा और हर जगह से परचम रिसालत बुलंद होगा। आज किसी को तकलीफ होती है तो होए, लेकिन कल को ये दिन आएगा इंशाअल्लाह हर जुबान कहेगी लब्बैक या रसूल अल्लाह। किसी को दिक्कत है तो वो अपनी दिक्कत का इलाज करे। एक बात बताओ, एक बात दिल पर हाथ रख करके पूछता हूं, आप भी अपने ज़मीर को बेदार समझते हो तो मुझे जवाब दो। दुनिया अगर तुम्हें रसूलुल्लाह का गुलाम कहती है तो क्या तुम्हें किसी को एतराज है? किसी को बुरा लगेगा? हुजूर का गुलाम कहने पर आपको किसी को बुरा लगेगा? मैं अपनी बात तो ये कहता हूं, मैं दुआ ये करता हूं, मौला गुलाम तो बहुत दूर की बात है, ऐ अल्लाह पूरी दुनिया में मेरी पहचान ऐसी बने कि दुनिया मुझे मदीने का कुत्ता कहा करे। इस बात में भी हमें कोई एतराज नहीं, बल्कि शौक है, हम सआदत समझते हैं। मैं आपसे पूछता हूं, रसूलुल्लाह का अगर गुलाम कहती है दुनिया तो आपको तकलीफ होगी? नहीं तकलीफ है, खुशी होती है। और अगर खुशी होती है तो मेरे अजीज खुल करके गुलामी क्यों नहीं करते? छुप छुप करके हुजूर की गुलामी नहीं होती। हुजूर से अगर मोहब्बत किया है खुल करके हुजूर से मोहब्बत दिखाओ और गुलामी में आओ। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी का मतलब यह नहीं है कि रात की अंधेरियां आए तो तुम ताश के पत्तों पर बैठे रहो। हुजूर की गुलामी का मतलब यह नहीं है कि तुम्हारे हाथों में शराब की बोतल हो और तुम्हारे घरों तक नशा पहुंच जाता हो। नादानो, हुजूर पाक की निस्बत तुम्हारे साथ जुड़ी हुई है, ये खसीस चीजें और जलील चीजें तुम्हारे हाथ में कहां से आ जाएं? तुमको खैर उम्मत कहा गया है। नशा बहुत दूर की बात, लेना तो छोड़ो, सूंघना भी तुम्हारे लिए जायज नहीं, सूंघना भी तुम्हारे लिए जायज नहीं। और अगर तुम्हारे अंदर ये हालात आ गए, गली के नुक्कड़ पर बैठे हुए नौजवान से अगर लड़कियां डरने लग जाएं कि यहां से गुजरो तो ये छेड़खानी न करे, हमारी इज्जत महफूज रहेगी कि नहीं रहेगी, तो फिर तुम पर गुलामी सादिक नहीं आती। तुमने झूठ कहा है हुजूर पाक की गुलामी। हुजूर पाक का गुलाम वो होता है जिसके लिए कायनात इंतजार करती है, पूरी कायनात पलकें बिछाकर इंतजार करती है। अल्लाह के रसूल का गुलाम हमारी तरफ आ जाए। ये सवालात सुने हो कि नहीं कभी? पहले हुजूर के बारे में पूछा जाएगा ना, और अक्सर लोग यहीं आकर अटक जाएंगे। बहुतों को तो ये जवाब तो पता है, मेरा दीन इस्लाम है, मेरा रब अल्लाह है, लेकिन हुजूर की तरफ आकर बहुत सारे मुनाफिक कहेंगे हा हा ला अदरी, मुझे अफसोस अफसोस, मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता। लेकिन जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुनिया में बेपनाह मोहब्बत करता था, कब्र में जब उसे पूछा जाएगा तो उसका जवाब क्या होगा? उसका जवाब शायर के शेर में इस तरह होगा, अब तो पाए नाज से ऐ फरिश्तों क्यों उठूं, अरे मर के पहुंचा हूं यहां इस दिल रुबा के वास्ते, मर के पहुंचा हूं यहां इस दिल रुबा के वास्ते। और जब तुम्हें पता है कि कब्र में उनको आना है और मुंह दिखाना है और हुजूर पाक की तरफ इशारा करके जब पूछा जाए जवाब दूंगा तब नजात होगी। और आखिरत के बारे में पूछता हूं मैं आपसे, आपको ये भी हदीस सुनाई गई होगी, बचपन से उलमा से सुनते आए होंगे, पूरी मखलूक आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएगी, वो किसी और नबी के पास भेजेंगे, नबियों के पास घूमती फिरती ये मखलूक रसूलुल्लाह के पास आएगी। मेरे आका फरमाएंगे आज मैं तुम्हारी शफाअत के लिए बैठा हूं। ये हदीस भी बचपन से सुना है ना, सुना है। और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिफारिश करेंगे, जिसका हाथ मेरे आका पकड़ ले उसके लिए जन्नत वाजिब है। हुजूर पाक उसको पकड़ पकड़ कर जन्नत में ले जा रहे होंगे। दो ही बातें मैं पूछता हूं मेरे अजीजों, जब कब्र में भी हुजूर पाक के अलावा कोई चारा नहीं है और हश्र में भी उनके अलावा कोई चारा नहीं है, वो जो न थे तो और वो जो न हो तो, जिंदगी में भी वो जो न हो तो और कब्र में भी वो जो न हो तो, हश्र में भी वो जो न हो तो, अगर नबी ना हो तो कुछ नहीं है। फिर सुनो, बरेली के इमाम कहते हैं आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। आज तुम्हें उस दरबार में आ जाना है। और देखो मेरे अजीजों, आज ये हुजूम मुंबई की सड़कों पर
मैं ये सिर्फ यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, कल मैं बंगाल की खाड़ियों से आया, बिहार गया, कई इलाकों में जिस मजमे के पास जाएं यही अंदाज है। सारे मुसलमानों का डीएनए इश्क रसूल में एक ही नजर आता है, हर जगह एक ही है, एक ही तौर तरीका है। लेकिन मैं आपको बताता हूं, ये मिंबर पर जो मुझे इज्जत दी गई है या मेरे इंतजार में ये महफिल सजाई गई है, वो इसलिए नहीं है कि रूलिंग पार्टी का कोई नेता आया हुआ है या सत्ताधारी कोई मिंबर आया हुआ है। नहीं मेरे अजीजों, हमें जो इज्जत मिली है वो बात सिर्फ इतनी है, या रसूल अल्लाह जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया है। ये निस्बत मुस्तफा की बात है। इसीलिए फिर मैं दोहरा रहा हूं बार बार ये बात, आ जाओ दामन मुस्तफा में, आ जाओ एक बार उस बाजार में अपने आप को बेच दो। बाजार में बेचने का मतलब ये नहीं है कि तुम दुनियावी अय्याशियां यूं ही जारी रखो। अभी मैं नारा लगाऊंगा तो सब जवाब देंगे। मैं कहूंगा इस्लाम, क्या कह रहे हैं? इस्लाम जिंदाबाद। ये दिल से कह रहे हैं आप इस्लाम? फिर मैं आपसे पूछता हूं, घर में जाओ तो घर में तुम्हारी बेटियों पर इस्लाम जिंदाबाद क्यों नहीं दिखता? घर में तुम्हारी बीवियों पर इस्लाम जिंदाबाद क्यों नहीं दिखता? इब्तिदा अपने घर से हो, इब्तिदा अपनी जिंदगी से हो। शर्म है उन नौजवानों पर जो हुजूर की सुन्नत नहीं रखना चाहते और जान देने की बात करते। हुजूर पाक पर जान देने की बात और हुजूर पाक की सुन्नत से दूरी, ये मेल नहीं खाती बात, ये अमल और कौल में मेल नहीं खाती है बात। इसलिए आओ, हम जब नारा लगाते हैं और बात करते हैं तो मुकम्मल यकीन के साथ, और आज अहद करके उठेंगे इंशाअल्लाह, अहद करके उठेंगे। क्या अहद करेंगे? जिंदगी ये नहीं है किसी की किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, जरा ऊंचा, जिंदगी है नबी की। अरे ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ। या रसूल अल्लाह दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान। हम आए यहाँ, उठे भी वहां, जमीन और जमा, मकीन और मकान, चुनी न चुना और बने तो जहां। जब सबका ये यकीन है कि रसूलुल्लाह के लिए हमने वक्त कर दिया है, हमारी जुबान भी, हमारी जान भी, हमारा आना भी, हमारा उठना भी सब रसूलुल्लाह के लिए है, तो क्या ही अच्छा होता कि दुनिया देख करके तुम्हारा नाम पूछ करके पहचानना चाहती है। तुम जब पूछते हैं तुमसे नाम क्या है तुम्हारा, नाम कुछ बता दिया, उससे भी पता नहीं चला बबलू नाम है, फिर पूछा कि पता नहीं चल रहा किधर का है, बाप का नाम पूछा, बाप का नाम राजा बताया, वहां भी नहीं पता चला, फिर दादा का नाम पूछा, कुछ नहीं कॉमन लग रहा है। ऐ नादानो, अगर किसी को पहचानना हो, मेरा नाम क्यों पूछे, मेरे बाप का नाम क्यों पूछे, मेरे दादा का नाम क्यों पूछे? मेरी आइडेंटिटी के लिए तेरे नामों को पूछने की जरूरत ही क्या है? अपने आप को ऐसा बनाओ जिस गली से गुजर जाओ बगैर नाम पूछो पुकार कर कहे ये ताजदार मदीना का गुलाम नजर आता है। तुम्हारी चाल चलन बताए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुहिब है। बस मेरी गुफ्तगू खत्म होने को आ गई है, आखिरी चंद जुमले समाप्त कर ले। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की वफादारी में अगर जिंदगी नहीं गुजारोगे तो बहुत सख्तियां देखनी पड़ेंगी, बहुत सख्तियां देखनी पड़ेंगी। आज जो जिल्लत और रुसवाइयां हैं, इसका एक सबब है, कुरान कहता है फलयहज़रिल्लज़ीना युखालिफूना अन अम्रिही अन तुसीबहुम फितना औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। मेरे रसूल के हुक्म की मुखालफत करने से बचो, वरना क्या होगा? अल्लाह फरमाता है अनकरीब तुम फितनों में मुब्तला किए जाओगे या दर्दनाक अज़ाब में गिरफ्तार हो जाओगे। दो चीजें, या फितनों में मुब्तला हो जाओगे या दर्दनाक अज़ाब में गिरफ्तार हो जाओगे। और आज दोनों चीजें हम देख रहे हैं, हम फितनों में भी मुब्तला हो गए और एक तरह के अज़ाब में भी आ गए। ये सिर्फ और सिर्फ वजह है रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से दूरी। अजीज़ान गिरामी वक़ार, आपको पता है जिसको ये आशनाई मिलती है, जिसको ये लज्जत मिलती है हुजूर पाक की, फिर उसके आंखों में कोई चीज नहीं जचती है, फिर उसको कोई चीज अच्छी नहीं लगती। एक नौजवान ऐसा था, एक नौजवान ऐसा, खालिद बिन वलीद सैफुल्लाहिल मसलूल। आपको पता है आपके साथ जितने नौजवान थे उनको खरीदने के लिए क्या क्या कोशिशें की गई।
मैं जो बात कह रहा हूं इसको सुन लो। 3 नौजवान एक बादशाह की कैद में आ गए थे। बादशाह ने उनसे कहा कि तुम मेरे दीन पर आ जाओ, मैं तुम्हें ओहदा भी दूंगा, मनसब भी दूंगा। भाइयों ने इनकार किया। बड़े भाई को खोलते हुए तेल में डाल दिया गया। वजीर ने कहा बादशाह सलामत, ये नौजवान मेरे हाथ में दे दो, 1 महीने का टाइम दो, इसका पूरा माइंड चेंज करके लाऊंगा। और हर जमाने में नौजवानों को खरीदने के लिए 2 ही ताकतें हैं, एक औरत है, दूसरी दौलत है। औरत और दौलत के जरिए से कितने लोगों का ईमान खरीदा जाता है। वजीर ने उस नौजवान को अपने हाथों में ले लिया और घर ले गया। घर ले जाकर के अपनी हसीन और जमील बेटी, जिसके रिश्ते के पैगामात बड़े बड़े बादशाहों के शहजादों से आते थे, उस लड़की को लगा दिया कि तू 1 महीने का टाइम है, इसका दिल अपनी तरफ खींच ले और इसका माइंड चेंज कर अपने दीन में दाखिल कर ले, मुंह मांगा इनाम बादशाह से दिला दूंगा। हुआ, लड़की भी तैयार और नौजवान लड़का है जिसके पांव आज बहुत जल्दी फिसल जाते हैं। उनके लिए मैं कह रहा हूं, क्यों फिसलते हैं पता है? क्यों तुम्हारे पांव फिसल जाते? उस नौजवान को जब ये चैलेंज था तो रात के वक्त जब अंधेरा छा जाता, वो लड़की हसीन और जमील खूबसूरत दुशीजा कमरे में दाखिल हुई। जैसे वो दाखिल होती, ये मुसल्ला बिछाता और सजदे में चला जाता। वो खड़ी इंतजार करती, ये सजदे से अब उठे तब उठे। सुबह हो जाती, वो सजदे से उठता नहीं था। जब तक वो जाती नहीं, सर नहीं उठाता। दूसरे दिन आई यही हाल, तीसरे दिन आई यही हाल। महीना गुजरने को आया, वो बैठी रहती, ओंगती रहती, सोती रहती, इंतजार करती। आखिर में उस खातून ने कहा, ए कट्टर दिल नौजवान, ए पत्थर दिल जवान, एक आंख उठाकर देख तो ले मेरे हुस्न को। मेरे अंदर शबाब क्या है, मेरा हुस्न क्या है। अरे लोग मुझे देखने के लिए कतारें लगाते, बादशाहों के घरों से मेरे पैगामे निकाह आते, और तू है कि मुझे देखता भी नहीं। नौजवान ने सर उठाए बगैर कहा, ए खातून, तो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकती, वापस चली जा। इसलिए कि जिन आंखों में जमाले मुस्तफा बसा हो, दुनिया का हुस्न उसे धोखा नहीं दे सकता। दुनिया का हुस्न उसे धोखा नहीं दे सकता। यही एक चीज है लज्जत आशनाई। जिसने नबी पाक की मोहब्बत को पा लिया, दुनिया का हसीन और जमील भी उसको अपनी तरफ माइल नहीं कर सकेगा। खातून का दिल पिघल गया, कहा मुझे तू अपने साथ दाखिल कर ले। मैं आई थी तुझे खरीदने के लिए, लेकिन अब तेरे हाथ बिकना चाहती हूँ। मेरे अजीजों, अपने आप को उस नौजवान के हवाले कर दिया, दीन में भी दाखिल हुई। ये तारीख है, फिर कभी आप कहीं से सुन लें। लेकिन इस बात में सिर्फ इतना बता रहा हूं, इंटरनेट के नशे में बैठे हुए वो नौजवान, रात को पोर्नोग्राफी देखने वाले या गंदी तस्वीरें और या फिल्में देखने वाले नौजवान, जिनकी आंखों की हया खत्म हो गई है, जिनके अखलाक तबाह हो गए हैं, उनसे क्या फिर उम्मीद रखी जाएगी? अगर इन बेहयाइयों से अपने आप को रोकना चाहते हो, मेरी आंखें हयादार हो जाएं, मेरे हाथ शर्म के साथ रहे, हया के साथ रहे, मैं अखलाक का कत्ल ना करूं, तो सिर्फ एक इलाज है, एक इलाज है। जिनको एडिक्शन हो चुका है मोबाइल की गंदी तस्वीरों के साथ, फिल्मों के साथ, तन्हाई में बैठ करके अपने आप को बचा नहीं पाते हो, उनके लिए एक इलाज देकर जा रहा हूं। रात की अंधेरियां जब आ जाएं, मेरे अजीजों, मोबाइल उठाने की बजाय एक बार वजू करके बैठो और सिर्फ इतना कहो, या रसूल अल्लाह, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। या रसूल अल्लाह, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। मेरे घर में भी हो जाए चरागा, मेरे घर में भी हो जाए चरागा। मेरे आका आओ कि मुद्दत हुई है, तेरी राह में अखियां बिछाते बिछाते, तेरी यादों में और तेरी चाहतों में बड़े दिन हो गए घर को सजाते सजाते। जिस दिन तुम्हारी ये बात मदीने पहुंच गई, वो आका तशरीफ लाए और फिर तुम्हें अपना दीदार करा दे, फिर तुम्हारा हाल ये होगा, उठोगे और जगह जगह जाकर फिर तुम्हारी जुबान से सिर्फ इतना ही निकलेगा, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। तो फिर तुम दुनिया में नहीं कहोगे घर मुझे इस नेता ने दिया है, बिजनेस इस सेठ साहब ने दिया है, फला ने ये दिया है, फला ने वो दिया है। ये गुण नहीं गाओगे। जिस वक्त तुम्हारी आंखों को लज्जत मिल जाए, तब फिर तुम पुकार कर कहोगे, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह।
آج ہم یہ عہد کر کے جاتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے لیے جینا سیکھتے ہیں, آپ کے لیے مرنا سیکھتے ہیں, بس شرط آپ کے لیے یہ ہے میرے عزیزو, قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دو, دہر میں نام محمد سے اجالا کر دو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.